morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to the mathematics class. In today's video, we will continue with the same chapter, that is chapter number 7, fractions. And our today's topic is lowest or simplest form of a fraction. Now, what do you understand by lowest or simplest form of a fraction? Now, a fraction is said to be in lowest term or simplest form. एक fraction lowest term या simplest form में कब होगा? If its numerator and denominator do not have any common factor other than 1. जब numerator और denominator का कोई भी common factor 1 के अलावा नहीं होगा तब हम उस fraction को क्या बोलेंगे? That the fraction is in lowest form. Or we can say that HCF of numerator and denominator of a fraction is 1. या हम ये भी अगर हम HCF of numerator and denominator अगर 1 है then also the fraction is in its lowest form. Either there is no other common factor other than 1 or the HCF of numerator and denominator is 1. Both are the ways to check whether the given fraction is in the lowest form or not. Now let's understand by example. Reduce 48 upon 54 to its lowest term. Now there are two methods to reduce the given fraction into its lowest term. We will understand both the methods. Now our first method. डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. हमारा फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर दो. ना 48 अपॉन 54. सबसे पहले 48 एंड 54 आर डिविजिबल बाय 2, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया. On dividing 48 by 2 we get 24 and 54 by 2 we get 27. Now 24 is divisible by 2 but 27 is not divisible by 2. So is there any other number which divides both 24 and 27? 3 is the number which divides both 24 and 27. Now we will again divide by 3. हम ऐसा तब तक करेंगे जब तक वो किसी सेम नंबर से divisible होता रहेगा. On dividing 24 by 3 we get 8 and 27 by 3 we got 9. Now 8 upon 9. अब आप देखो क्या 8 और 9 कोई ऐसा नंबर है जो 8 और 9 दोनों को डिवाइड करे. 8 is divisible by 2 but 9 is not divisible by 2. 9 is divisible by 3 but 8 is not divisible by 3. तो इन दोनों को ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 8 और 9 दोनों को डिवाइड करे except 1. अब यही आ गया ना that they do not have any common factor other than 1. तो 8 और 9 को सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है. That means the lowest form of 58 by 54 is 8 upon 9. This was your first method. I hope first method clear है. It's very simple. Divide both the numerator and denominator by the same number till you get the lowest term. Clear? Now our second method says find the HCF of both numerator and denominator and then divide them by the HCF. हमारा सेकेंड मेथड क्या कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करो एंड देन डिवाइड देम बाय द HCF. फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को HCF से डिवाइड कर दो. तो फर्स्ट फाइंड द HCF ऑफ 48 एंड 54. हमने चैप्टर नंबर 3 में HCF सीखा था फाइंड करना, तो यहाँ पे हम HCF फाइंड करेंगे बाय लॉन्ग डिविजन मेथड. 48 एंड 54 इज द डिविडेंड, 48 इज योर डिवाइजर. ऑन फाइंडिंग द HCF पहले 1 पे डिविजिबल हुआ, 6 रिमाइंडर हुआ. इन नेक्स्ट स्टेप इट विल बिकम द डिवाइजर एंड 48 विल बिकम और डिविडेंड. 6 8 द 48, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0. जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आया उस स्टेप का डिवाइजर क्या है 6. सो आर HCF इज 6. सो अब HCF हमारा क्या आ गया 6. नाउ वी विल डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डायरेक्टली बाय 6. तो 48 बाय 54 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 6. 48 को 6 से डिवाइड करो 8, 54 को 6 से डिवाइड करो 9. तो यू विल डायरेक्टली गेट द लोएस्ट टर्म. तो 8 अपॉन 9. आप चाहे किसी भी मेथड से फाइंड करो यू विल गेट द सेम आंसर. क्लियर? अगर आपको एग्जाम में आता है कि रिड्यूस इट टू द लोएस्ट फॉर्म, अगर कोई मेथड मेंशन नहीं है देन यू कैन परस्यू विद एनी ऑफ योर मेथड. क्लियर है? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द अनदर एग्जांपल. राइट द फ्रैक्शन 108 upon 300 इन इट्स लोएस्ट फॉर्म. अब हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में करना है. देखो अगर हम इसको फर्स्ट मेथड से परस्यू करते हैं कि पहले हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये बहुत लंबा जाएगा. तो डायरेक्ट इज कि हम फटाफट से HCF फाइंड करें एंड डायरेक्टली डिवाइड बाय द HCF. वो सबसे शॉर्ट मेथड है.
तो फर्स्ट वी विल फाइंड द HCF ऑफ 108 एंड 300. तो हमने HCF फाइंड किया, मैंने राइट साइड में HCF फाइंड करके दिखा रखा है. एग्जाम में आता है तो आपको भी HCF शो करना है. 300 बिकम्स योर डिविडेंड 108. 2 पे डिविजिबल होगा 216. 84 बच गया रिमाइंडर. नेक्स्ट स्टेप में 84 इज योर डिवाइजर, 108 इज योर डिविडेंड. 84 1 the 84. 24 comes out to be the remainder. 24 is your divisor, 84 is your dividend. 24 3 the 72. 12 is your divisor, 24 is your dividend. 12 to the 24, remainder comes out to be 0. So our HCF is 12. HCF of 108 300 is 12. Now divide 108 and 300 both by 12. तो हमने इसको 12 से डिवाइड किया. 108 को 12 से डिवाइड करोगे you will get 9. 300 को 12 से डिवाइड करोगे you will get 25. So our lowest form of 108 upon 300 is 9 upon 25. Clear? I hope how to reduce a given fraction into its lowest form is clear to you. Now our next topic is comparison of fractions. अब हम सीखेंगे how to compare the fractions. Now our first case is fraction with same numerator. इसमें थोड़े से different cases आएंगे. फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर. अगर कोई फ्रैक्शन है और उनके न्यूमरेटर सेम है तब हम उसको कैसे कंपेयर करेंगे. देयर इज अ शॉर्ट वे. इफ टू फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमरेटर, अगर कोई दो फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम होता है, देन द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर, तब जो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा इज ग्रेटर, वो बड़ा हो जाएगा. आई रिपीट माई सेल्फ. इफ टू फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमरेटर, अगर कोई दो फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम है, देन द फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर, तो वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा इज ग्रेटर, वो सबसे बड़ा हो जाएगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. राइट द फ्रैक्शन 3/7, 3/4, 3/11, 3/5, 3/8 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग मीन्स बड़े से छोटा. अब आप देखो यहाँ पे सबके न्यूमरेटर क्या है 3. तो अगर हम डिनोमिनेटर कंसिडर करें, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा. अब ये बताओ कि सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है. 4. फिर कौन सा है 5, फिर 7, देन 8, देन 11. तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वाला फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा. तो 3/4 सबसे बड़ा हो गया, फिर 3/5 होगा, फिर 3/7 होगा, फिर 3/8 होगा और फिर 3/11 होगा. क्लियर? दैट मीन्स अगर मैं डिनोमिनेटर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं तो हमारे पास जो फ्रैक्शंस आएंगे वो आ जाएंगे 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 3/11. तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया हमारा, डिक्रीजिंग हो. वी शैल कंपेयर द डिनोमिनेटर्स. हमने यही देखा कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा. तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर 4 था, तो 3/4 सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया. फिर उससे बड़ा डिनोमिनेटर 5 था, तो वो उससे बड़ा उससे थोड़ा सा छोटा हो गया. देन 3/7, देन 3/8, देन 3/11. दिस इज द केस व्हेन यू हैव द सेम न्यूमरेटर, ओनली व्हेन यू हैव द सेम न्यूमरेटर. क्लियर? ना अब हमारा नेक्स्ट सब टाइप है फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर. अभी तो हमने सेम न्यूमरेटर का केस समझा. अब हम समझेंगे फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर. अगर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं ना. इफ टू फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर, अगर दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है, देन फ्रैक्शन विद स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉलर फ्रैक्शन. तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे. जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. Clear? I repeated. If two fractions have same denominator, then fraction with smaller numerator is the smaller fraction. तो जिस fraction का smaller numerator होगा वो fraction भी छोटा होगा. Now arrange 7/8, 3/8, 11/8, 5/8, 13/8 in descending order. Descending means बड़े से छोटा. Now since the given fractions are like fractions, so we will compare numerators. अब न्यूमरेटर में ये बताओ सबसे बड़ा कौन सा है 13. तो फ्रैक्शन विद स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉलर फ्रैक्शन. तो मतलब जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा सबसे छोटा होगा और जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा सबसे बड़ा होगा. तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम बड़े से छोटा देखेंगे. तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या है 13. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 13/8. उसके बाद 11, 11/8, देन 7,
7/8, then 5/8, then 3/8. Clear? Simple है. Clear हुआ both the cases? Fractions with same numerator and fractions with same denominator. Clear? Now, our next subtype is fraction with different numerator and different denominator. अगर numerator भी different है और denominator, that means अगर unlike fractions आ जाते हैं compare करने को, then how we are going to compare them? For comparing the fraction with different denominator, first we will convert them into like fractions, that is same denominator. अगर हमारे पास unlike fractions क्या होते हैं? different denominators. अगर हमारे पास fractions with different denominator हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? we will convert them into like fractions. हम सबसे पहले उसको convert करेंगे किसमें? like fractions, मतलब same denominator बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? by taking the LCM of denominators. हम denominators का LCM लेंगे and then we will compare. LCM लेके हम denominator same करेंगे and then after that we will compare the fractions. Clear? ये आपको अभी सिर्फ एक थ्योरी से समझ में आया, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा. Now compare the fraction 3/4, 5/8, 8/9, 2/3 and write them in the ascending order. आपको इन fractions को ascending order में लिखना है. Ascending order means छोटे से बड़ा, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड लास्ट में सबसे बड़ा. अब देखो, सिंस द गिवन फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शंस है. सो टू कंपेयर वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट वी विल कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन, दैट इज सेम डिनोमिनेटर, बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. बस ये याद रखना है, हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना, न्यूमरेटर का नहीं लेना. तो वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 8, 9 एंड 3. 4, 8, 9 एंड 3. ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था 4, 8, 9 एंड 3. तो हमने एलसीएम लिया 4, 8, 9, 3. सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा, 2 to the 4, 2 4 the 8, 9 as it is, 3 as it is. 2 1 the 2, 2 2 the 4, 9 as it is, 3 as it is. 2 1 1, 9 as it is, 3 as it is. Then 3 से divisible, 3 1 the 1 1 as it is, 3 3 the 9, 3 1 the 3. Again 3 से सारे 1 आ गए. Now product of this will give you the LCM 2 into 2 into 2 into 3 into 3, which comes out to be 72. अब हमारा LCM कितना आ गया बेटा? 72. अब हम सारे डिनोमिनेटर्स, सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या बनाएंगे? जो हमारा LCM है. यहाँ तक समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला फ्रैक्शन लेते हैं 3/4. 3/4 है. अब मुझे डिनोमिनेटर सेम करने हैं. डिनोमिनेटर क्या बनाना होता है? जो हमारा एलसीएम है. एलसीएम कितना है? 72. अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 72 आ जाए? अब देखो, उसके लिए मैं एक शॉर्ट वे बताती हूँ. यहाँ पे 2 into 2 4 होता है, तो इन दो को हाइड कर लो. ठीक है, तो अब क्या बचा? 2 into 3 into 3 कितना आएगा? 2 into 3 into 3 करो एक बार, 18. तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? क्योंकि देखो 2 into 2 4 था, तो 4 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 18 से. तो कितना आ गया? 72. तो 4 को नीचे अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करने पे 72 आ रहा है, तो ऊपर भी 18 से ही करूँगी. 18 into 3 is 54/72. तो 3/4 किसके इक्वल हो गया? 54/72 के. अब नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? 5/8. अब आता है 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 72 आ जाए. यहाँ पे पहले देखो 8 किस किस को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है? 2 into 2 into 2 हाइड कर लो. यहाँ तक क्या बचा? 3 into 3. दैट मीन्स किससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा? 9 पे. तो 8 into 9 is 72. तो नीचे 9 से करें तो ऊपर भी 9 से 45/72 आ गया. नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 8/9. अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 72 आ जाए. यहाँ पे 9 किसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है? 3 into 3. इसको हाइड कर दो. क्या बचा? 2 into 2 into 2 8. दैट मीन्स 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 8 से. नीचे 8 से करें तो ऊपर भी 8 से. तो 8 8 64/72. लास्ट फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? 2/3. अब 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 72 आ जाए? यहाँ पे 3 है, उसको हाइड कर लो. क्या बचा? 2 to the 4 to the 8 3 24. नीचे 24 से करूँगी तो ऊपर भी 24 से. 2 into 24 is 48/72. अब देखो ये सारे फ्रैक्शंस बन गए हमारे इक्वल. 3/4 54/72 के, 5/8 45/72 के, 8/9 64/72 के, 2/3 48/72 के. सब अब ये क्या लाइक फ्रैक्शंस बन गए, सबके डिनोमिनेटर 72 आ गए. अब हम इसको अरेंज करेंगे. हमें किस में ऑर्डर में अरेंज करना है? असेंडिंग में, छोटे से बड़ा. अब सबसे छोटा क्या है? वी विल अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. बाय मिस्टेक आई हैव अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. मैं नीचे असेंडिंग ऑर्डर में भी यहाँ पे साइड पे करके दिखा देती हूँ आपको.
अब सबसे पहले सबसे छोटा क्या है आपके पास, 45/72, देन 48/72, देन 54/72, एंड लास्ट में 64/72। ठीक है। अब 45/72 किसके इक्वल था, 5/8 के। - 48/72 2/3 के। - 54/72 3/4 के। और लास्ट में 64/72 8/9 के। तो ये आपके पास आपका क्या आ गया, असेंडिंग ऑर्डर। क्या आ गया, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया था, बट मैंने उसी के ऊपर आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी करके शो कर दिया। ठीक है, वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या आया, 45/72 सबसे छोटा, देन 48/72 उससे बड़ा, देन 54/72 उससे बड़ा, एंड लास्ट में 64/72। 45 5/8 के था, 48 2/3, 54 3/4 एंड 64 8/9। मैंने नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है, जस्ट उसका ऑपोजिट। क्लियर है? क्वेश्चन में असेंडिंग बोला था, हमने असेंडिंग भी फाइंड कर। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट, राइट द फ्रैक्शन 11/8, 17/12, 5/3, 8/6 एज मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन फ्रैक्शंस को मिक्स में कन्वर्ट करना है और फिर इसको अरेंज करना है असेंडिंग में। तो सबसे पहले हम इसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। मैंने मिक्स में कन्वर्ट करके शो नहीं किया है, ये आप सबको आता है, आप खुद शो कर सकते हैं। 11/8 को जब मिक्स में करोगे तो इट विल कम 1:3/8। 17/12 को करोगे तो 1:5/12। 5/3 को करोगे तो 1:2/3। 8/6, देखो सबसे पहले 8/6 दोनों 2 से डिविजिबल हैं, दे आर नॉट इन लोएस्ट टर्म, तो हमने 2 से डिवाइड किया तो 4/3 आ गया। अब हमने इसको रिड्यूस किया तो 1:1/3। अब मुझे इन सब को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। अगर देखो, अब सबसे पहले हम इसके होल नंबर पार्ट को कंपेयर करेंगे। फॉर कंपेयरिंग दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन, फर्स्ट वी विल अरेंज देयर होल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब सबके होल नंबर क्या है, 1 1 1 1 1, तो होल नंबर सबके सेम है, तो फिर हमें इसके फ्रैक्शन पार्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर इनके होल नंबर डिफरेंट होते तो हम होल नंबर को अरेंज कर देते असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाते। और अगर किसी दो के सेम होते होल नंबर, फिर उनके फ्रैक्शन पार्ट को कंपेयर कर लेते। ठीक है, फॉर कंपेयरिंग दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन वी फर्स्ट विल अरेंज देयर होल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। सिंस द होल नंबर पार्ट इज 1, क्योंकि सबका होल नंबर सेम 1 है, सो वी विल कंपेयर द फ्रैक्शनल पार्ट। इसीलिए हम इनके फ्रैक्शन पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, दैट इज 3/8, 5/12, 2/3 एंड 1/3। अब सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। मैंने राइट साइड पे एलसीएम लिया हुआ है, एलसीएम कम्स आउट टू बी 24। तो 3/8 को 8 को किससे मल्टीप्लाई करो, 24 आ जाए 3 से, तो नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से, 9/24। ठीक है, 5/12, 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, 12 टू द 24, तो ऊपर भी 10/24 आ गई है। 2/3, 3 को 8 से करेंगे तो 16/24 आ गया, 1/3 आ गया, 8/24। अभी हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस आ गए, हमें इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा, 8/24, देन 9/24, देन 10/24 एंड देन 16/24। यही आ गया। 8/24 किसके इक्वल था, 1/3 के। 9/24 किसके इक्वल था, 3/8 के। 10/24 5/12 के, और 16/24 2/3 के। अब इनके हमने मिक्स्ड पार्ट्स लिख दिए। 1/3 1:1/3 था, 3/8 1:3/8 था, 5/12 1:5/12 था, और 2/3 1:2/3 था। तो हमने इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर ना? लास्ट एग्जाम्पल वर्ड सम है, ध्यान से समझेंगे।
A father made a will that out of his 3 sons, the eldest should get 1/12 part. फादर ने एक विल बनाई जिसमें उन्होंने ये लिखा कि जो उनका एल्डेस्ट सन है उसको 1/12 पार्ट मिलना चाहिए, द मिडल वन 3/10 पार्ट, मिडल वन को 3/10 पार्ट मिलना चाहिए, एंड द यंगेस्ट 1/5 पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, और यंगेस्ट को 1/5 पार्ट मिलना चाहिए प्रॉपर्टी का. स्टेट हाउ द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. हमें ये बताना है किसको कितनी प्रॉपर्टी मिली, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो सबसे पहले शेयर ऑफ द एल्डेस्ट सन 1/12, शेयर ऑफ द मिडल सन 3/10 और शेयर ऑफ द यंगेस्ट सन 1/5. ठीक है. इन ऑर्डर टू अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर वी विल कंपेयर इट. अब हमें इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि किसको कितनी प्रॉपर्टी मिली, तो हमें सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हमें एलसीएम सेम करने पड़ेंगे. हमें अरेंज करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का 12, 10 एंड 5 का. दैट्स व्हाट आई हैव डन. एलसीएम आपका आ गया 60. ठीक है. तो 1/12, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 60 आ जाए 5 से, नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 से, 5/60. 3/10 को 10 को किससे करें, 6 से, तो ऊपर भी 6 से, 18/16. एंड लास्ट में 1/5, 5 को अगेन 12 से करेंगे तो 12/60. अब अगर हम इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले क्या आएगा, 5/60, देन 12/60, देन 18/60. 5/60 1/12 के इक्वल था, 12/60 1/5 के इक्वल था, 18/60 3/10 के इक्वल था. अब 1/12 किसको मिली थी, एल्डेस्ट सन को. हेंस एल्डेस्ट सन गॉट 5/60th पार्ट. 1/12 5/60 मिली उसको, तो एल्डेस्ट सन को कितना मिल गया, 5/60 पार्ट. 1/5 कितना ये पार्ट किसको मिला था, यंगेस्ट सन को. देन द यंगेस्ट सन गॉट 12/60th पार्ट. एंड 18/60 किसको मिला, 18/60 3/10 के इक्वल है, एंड मिडल सन गॉट 18/60th पार्ट. तो इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया. आई होप इट्स क्लियर टू यू.